So we were discussing about the parts of flowers, right? There are four main whorls. સૌથી બહારનું whorl, which is calyx. The second number corolla. Third number androecium, જ્યાંથી આપણે શરૂ કરવાનું છે. Today we are starting with the androecium, and last one will be the gynoecium. So we hope that today we will finish about the androecium and gynoecium both. Fine. So let us begin with the androecium. The male reproductive component of the flower is the androecium, as we have seen earlier. इसके पहले जब हमने डिस्कशन किया था चारों पार्ट का, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है दैट इज एंड्रोइशियम. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, सो व्हाट्स एंड्रोइशियम इज मेड अप ऑफ, राइट? एंड्रोइशियम क्या है वो तो हम जानते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. बट वो किससे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट्स व्हाट द डिस्कशन फॉर अस राइट नाउ. So it is consisting two parts, two component from where the androecium is getting composed, right? All right. So let us begin with any of the the part or the member of the androecium that's called the stamen, right? So koi bhi androecium, it is made up of stamen. So it is a part of androecium. Androecium is a whorl, right? And component of androecium is a stamen. As I said, they are made up of two parts. So कोई भी stamen में दो part है. It is made up of two parts, right? One is called stalk and other is called anther. So if you see the structure here, right, this is the typical structure of stamen. The upper portion is the anther and this lower structure is a stalk. So these are the two main component of any stamen which is making the structure of androecium. It is, again I said, it is a male reproductive organ of the flower, and the responsibility of stamen would be the production of male gamete, but not matured into the state, immature state. So pollen grain would be produced within this part of the the reproductive part called androecium. So anther is a structure which is responsible for the formation of pollen grains. All right. With respect to structure of pollen grain, it is usually produced in the anther, and it is by either air, that is wind, हाँ बोलो बोलो, सर के बाद तो कुछ होना चाहिए ना. All right. Okay. Okay. Fine. We have started with the androecium today, third whorl of the structure of flower. Okay, androecium is the name of the whorl, and its component from androecium is made up of is called the stamen, right? So stamen is a component of the androecium. Structural and functional unit of the androecium is a stamen. Now androecium is considered to be as male reproductive organ of flower. कोई भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, right? Now comes the structure of stamen. Stamen composes these two structure. Number one, stalk. Number two, anther.
Now with respect to this diagram, this is the diagram of the stamen. ये नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, एंड ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर. इतना मैंने इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया है. नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन about the other thing, I mean, and that was about the pollen grain what I was talking about, right? So what is the pollen grain according to you? Whatsoever you have the knowledge is, say for example कोई भी एंथर है उसमें से pollen grain release होगा either by air current or by water or by any other vector. It is getting transferred from one flower to the other flower or on the same flower. So that is the the event which is called pollination. So pollination lead to fertilization later on, and it will produce the seeds and fruits later on. तो पोलन ग्रेन के बारे में ये हमें पता है, राइट? ओके, पोलन ग्रेन जहां पे प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था अभी? पोलन ग्रेन जिसमें प्रोड्यूस हुआ है या तो होना है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? किसको याद है अभी? यस, जामनगर. सर एंथर. यस, सर एंथर. ओके, सो एंथर is a structure where this pollen grain has to be produced. तो ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को. सो एंथर में पोलन ग्रेन बनेगी और पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है. पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट को बनना है अभी लेटर ऑन. तो मेल गैमेट्स इज टू बी प्रोड्यूस लेटर ऑन. अभी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है. प्लीज डू कंसिडर दिस वे. पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है. मेल गैमेट किस में से बनेगा? पोलन ग्रेन में से बनने वाला. एंड पोलन ग्रेन रिलीज कहां से होगी? एंथर में से रिलीज होगी, राइट? तो एंड्रोइशियम जहां पे ये एंथर है, राइट, उसको मैं बोलूंगा स्पोरेंजिया, राइट? इसके अंदर होने वाले हैं जिसका स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा वो होगा स्पोरेंजियम. मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं राइट नाउ अबाउट फ्यू टर्मिनोलॉजीज विच हैव बीन एनकाउंटर्ड इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सभी आपको आ गए. अब मैं जो लिखने वाला हूं वो सब चैप्टर नंबर 3 का है. से फॉर एग्जांपल स्पोरेंजियम, तो ये वर्ड अपना पुराना है, नया वर्ड नहीं है. मैं तो यूज कर रहा हूं वो वर्ड को आपके लिए, कंपेयर करवा रहा हूं यहाँ पे, राइट? तो ये है स्पोरेंजियम जो एंथर के अंदर होगा. तो अभी मुझे एंथर के अंदर आपको स्पोरेंजिया को दिखाना पड़ेगा, राइट, कि यहां पे होता है. तो देखिए मैं फिर से वहां पे जा रहा हूं, ये रहा. तो ये जो ऊपर का आप एंथर देख रहे हो, ये अगर आप देखोगे तो उसके 2 पार्ट्स है. कितने पार्ट है? 2 पार्ट है. अगर उसका क्रॉस सेक्शन लेके मैं देखूंगा तो यहां पे आप देख सकते हो, राइट, कि अंदर खाली जगह है, राइट? इट इज अ गैप इन बिटवीन. एंड इस गैप के अंदर आप देखोगे तो थोड़े छोटे छोटे दाने जैसा आपको दिख रहा है. दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन. अहमदाबाद सेंटर. तो बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ये 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी. अभी आप रिकॉर्डिंग लेटर ऑन देख लेना, है ना? तो ओके, पोलन ग्रेन जो यहां पे बनेगी, तो ये क्या है पता है? ये गैप है. गैप मतलब इसके अंदर पोलन ग्रेन क्रिएट होने वाली है. पोलन ग्रेन जो बनेगी वो इसके अंदर बनने वाली है, राइट? सो ये पोलन ग्रेन इसके अंदर बनेगी. ये बनेगा आपके लिए स्पोरोगोनिया.
स्पोरोगोनिया या तो स्पोरेंजियम, जो भी आप बोलो, राइट। तो स्पोर फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? स्पोर फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर किसके अंदर है? एंथर के अंदर। अगर एंथर का क्रॉस सेक्शन लोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, उसके अंदर स्पोरेंजियम या तो स्पोरोगोनिया। ओके, पोलन ग्रेन जो है वो कौन बनाएगा? तो क्या स्पोरेंजियम बनाएगा? कौन बनाएगा? स्पोरेंजियम बनाएगा। और लेटर ऑन उसमें से बनेगा, वो बनेगा मेल गैमेट। तो अब मैं, आप जिस वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे वर्ड्स में यहां पे लिख रहा हूं एक्स्ट्रा, राइट। ये स्पोरोगोनिया है, इसमें से जो बन रहा है उस सेल को हम बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे? मदर सेल। अब मेल एंड फीमेल गैमेट में, मेल गैमेट को हमने बोला था माइक्रोस्पोर। इज इट क्लियर? अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर। एम आई वेरी करेक्ट? यस और नो? ऑल राइट, गुड। सो यहां पे जो मदर सेल बनेगा वो होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसका दूसरा नाम है पोलन मदर सेल। क्या नाम है दूसरा? पोलन मदर सेल। अब मैंने माइक्रोस्पोर की जगह पे पोलन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि उसमें से बनने वाली है पोलन ग्रेन, इसीलिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर। रेडी? तो यहां पे वर्ड को रिप्लेस किया गया है, बाकी मेन टर्मिनोलॉजी या तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम टू सेम वही है जो आपने पढ़ा है, सिर्फ वर्ड को रिप्लेस किया है मैंने। जो चीज पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जिम्नोस्पर्म के अंदर, वो एंजियोस्पर्म में पोलन मदर सेल हो गई। रेडी? तो ये जो स्पोरेंजियम है, इसके लिए मुझे जो वर्ड यूज करना है वो वर्ड को मैं बोलूंगा ये पोलन सेक। सेक मतलब कोथड़ी, राइट, पाउच। पोलन सेक क्यों? क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने वाली है, इसलिए उसको पोलन सेक बोला जाता है। पोलन सेक, पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल, कोई भी मदर सेल आज के बाद हमेशा से याद रख लेने का है कि कोई भी मदर सेल होगा वो ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होगा, राइट। उसकी प्लॉइडी जो है दैट विल बी डिप्लॉयड, और उसका होगा ऑलवेज मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। एंड वो जो बनाएगा वो होगा माइक्रोस्पोर। क्या होगा? माइक्रोस्पोर। तो यहां पे माइक्रोस्कोर की जगह तो किसी और ने ले ली है, पोलन। सो दैट्स वाई इट इज नॉट माइक्रोस्पोर, इट इज पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन का इतिहास, हिस्ट्री मैंने आपको समझाई, कहां से प्रोड्यूस होती है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि वो मियोसिस से बनी है। किसका मियोसिस है? पोलन मदर सेल का मियोसिस है। पोलन मदर सेल कहाँ पे है? वो है पोलन सेक या तो स्पोरोगोनियम के अंदर। स्पोरोगोनिया कहाँ पे है? एंथर के अंदर। आई रिपीट, एंथर के अंदर पोलन सेक या स्पोरोगोनिया है, उसके अंदर पोलन मदर सेल है, उसका मियोसिस होना है, उसका मियोसिस होता है तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल। हम सब चाहिए मुझे, चलिए। ऑल राइट, 5 बार मैंने रिपीट की है पूरे की पूरी। आई होप भुज सेंटर ऑल्सो हैव गॉट दिस पॉइंट परफेक्टली नाउ। रेडी? ओके, अहमदाबाद सेंटर ऑल्सो हैव गॉट दिस परफेक्ट पॉइंट परफेक्टली, बिकॉज मैंने ये 3 बार रिपीट कर दिया आपके आने के बाद, राइट। तो ऐसे कोई भी एंड्रोशियम के अंदर, कोई भी एंड्रोशियम के अंदर
जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट। पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है। इट मीन्स अभी ये पोलन ग्रेन को, इस पोलन ग्रेन को मेल गैमीट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। बट ये लेटर ऑन होने वाली प्रोसेस, लेटर ऑन आफ्टर पोलिनेशन होने वाली प्रोसेस, तो अभी उसका कोई भी इंपॉर्टेंस हमारी डिस्कशन के अंदर नहीं है। सो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। अपना अब तक का जो डिस्कशन था वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये तो होना है, तो वो तो बाद की प्रोसेस है मेल गैमेट फॉर्मेशन। तो वो तो पोलिनेशन होगा तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वरना नहीं होने वाली। अंडरस्टूड? उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं वेरी शॉर्टली। से फॉर एग्जाम्पल कोई एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, आप समझ लो ये मेरा जो पाम है वो फ्लावर है। तो उड़ती उड़ती काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोलन ग्रेन इसके ऊपर पड़ सकती है। हम सब ओके। अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर, उसको कौन से टाइप की पोलन ग्रेन चाहिए पता है? उसकी खुद की स्पीसीज की होगी तो ही। से फॉर एग्जाम्पल वो फ्लावर सनफ्लावर है तो उसको सनफ्लावर की पोलन ग्रेन ही चाहिए, बट उसके ऊपर तो नीम ट्री की भी आई है। तो वो कैसे पता करेगा ये कौन सी पोलन ग्रेन है? तो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। इट हैज इक्विप्ड विथ अ स्पेसिफिक एंजाइम्स, राइट? किसके ऊपर पड़ेगी पोलन ग्रेन? किसके ऊपर पड़ती है? स्टिग्मा के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट, गाइनेशियम जो है उसका जो कंपोनेंट है, उसका जो टॉप का रीजन है जिसको आप स्टिग्मा बोलते हो, तो स्टिग्मा के ऊपर वो फॉल होगी। तो स्टिग्मा के पास वो रिकॉग्निशन पावर है। डू रिमेंबर दिस। स्टिग्मा के पास वो रिकॉग्निशन पावर है। वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये खुद की पोलन ग्रेन मीन्स खुद की है या खुद की स्पीसीज की है, आई मीन, और ये दूसरी कोई स्पीसीज की। उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज करना। इट हैज अ पावर ऑफ रिकॉग्निशन। सो अगर वो रिकॉग्नाइज हो गई तो ही ये काम होगा, वरना वो काम नहीं हो। अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुई तो मेल गैमेट नहीं बनेगा। तो मेल गैमेट बनता है या नहीं बनता है, उसके लिए क्या होगा? पोलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज होना पड़ता है। अगर पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज हुई तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। ये सिर्फ याद रखना है। अभी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जब बनती है तो पोलन ट्यूब के अंदर ये मेल गैमेट बनते हैं। ये पूरा पोर्शन आपको लेटर ऑन स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 में आने वाला है। तब तक आपको ये कहीं पे भी बीच में आने वाला नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको, मैंने बोला कि ये बाद में होगा, तो बाद में कब, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में 3-4 मिनट में समझा दिया, राइट? ओके, so that's what the story of anther and pollen grain. ओके, मैं वापस यहां पे आता हूं स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो स्टोरी है, दैट इज द स्टोरी अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। ये एंथर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्टोरी मैंने आपको भी समझाई। तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, पोलन सेक का है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी। तो दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड कि भाई कोई भी अगर आप एंथर का पार्ट लो तो कोई भी एंथर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, 2 है। तो इन दोनों को आप बोलोगे LOBE, लोब। क्या बोलोगे? LOBE, लोब। तो इट इज कॉल्ड बाई लोब्ड। बाई मतलब 2,
दो लोब वाली है, बाइलोब्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो बीच में से अगर देखो तो एक साइड और दूसरी साइड, देयर आर टू पार्ट्स, सो बाइलोब्ड है ये स्ट्रक्चर। ओके, कोई भी एक लोब को ले लो, एक लोब, उसमें दो चेंबर है, एक ही लोब के अंदर दो चेंबर है। चलिए ये रहा, ये पार्ट अगर आप देखोगे, ये पार्ट, इसके अंदर ये 1 और ये 2, ये दो चेंबर है, 1 and 2 दो चेंबर है खाली खाने जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाली है, 2 चेंबर्स है, राइट। सो बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैव 2 चेंबर्स। टेट्रा चेंबर्ड स्ट्रक्चर, 4 चेंबर है टोटल, 1 2 3 एंड 4 चेंबर है। पोलन सैक, जिसको मैंने बोला था पोरोगोनिया, उसको मैंने नाम रिप्लेस कर दिया था पोलन सैक। तो ईच पोलन सैक कंटेन पोलन ग्रेन। पोलन सैक के अंदर क्या बनने वाला है? पोलन ग्रेन। कैसे बनने वाला है पूरी स्टोरी मैंने आपको अभी समझाई है। ओके, समटाइम्स they could not be able to get matured within a given time। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर अभी ताजा ताजा बना है और वो जो प्लांट है, प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो गई। अंडरस्टूड? तो वो जो फ्लावर है वो मैच्योर नहीं हो पाता है। अगर फ्लावर मैच्योर नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव गेमेटिक स्ट्रक्चर। एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो उसको बोलेंगे स्टराइल स्टेमेन। स्टराइल स्टेमेन, देयर आर 2 वर्ड्स, एक है फर्टाइल और एक है स्टेराइल। मैं वापस जाता हूं स्लाइड के ऊपर, लिख देता हूं आपके लिए वो दोनों वर्ड। 2 वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है। ये पोलन ग्रेन को यहां से निकाल देता, एक है फर्टाइल और एक है स्टराइल, राइट। कोई गेमेटिक स्ट्रक्चर अगर गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, गेमेटोफाइट structure produces gametes, तो उसको बोलते हैं फर्टाइल। तो सही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, कोई इंडिविजुअल है, सही फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो इंडिविजुअल प्लांट या इंडिविजुअल एनिमल वो भी अगर गेमिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो फर्टाइल है। अगर वो गेमिट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है बाय एनी मीन, कोई भी अगर डिफेक्ट है, इमेच्योर्ड है, देन इट इज कॉल्ड स्टराइल। तो इफ गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर कुड नॉट और कैन नॉट प्रोड्यूस द गेमेट, तो उसको बोलते हैं स्टराइल। तो fertile and sterile, there are 2 technical words that is applicable either for the individual or the structure which can either produce gamete or cannot be able to produce the gamete. All right, so sometimes a sterile stamen can be found, and if the stamen is sterile, इसका नाम देखिए, स्टेमिनोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, क्वेश्चन में आने वाला है। स्टेमिनोड, स्टराइल स्टेमेन। ओके, प्रेजेंस ऑफ एंड्रोइशियम, प्रेजेंस ऑफ स्टेमेन, 3rd नंबर का वर्ल है, तो उसके नीचे यूजुअली पेटल्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस बेंच के ऊपर बैठे हैं, सही फॉर एग्जांपल, तो पीछे की बेंच जो होती है वहां पे अपना टेका ऑलरेडी लग ही जाता है। अगर आपको लगाना है फिर भी, नहीं लगाना है फिर भी लग जाता है। सो दैट बिकम्स अवर रेगुलर हैबिट।
राइट। बट यहां पे क्या है, से फॉर एग्जांपल ये पेटल है और ये स्टेमेन है, तो कभी कभी ऐसे वो टेका ले लेता है इसके साथ, तो स्टेमेन समटाइम्स अटैच टू दी पेटल्स, राइट। सो व्हेन स्टेमेन अटैच टू पेटल, अगर ऐसा होता है कि वो उसके साथ अटैचमेंट में है, तो उसको बोलते हैं एपीपेटेलस। क्या बोलेंगे? एपीपेटेलस। से फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल, रिंगणा जो आप खाते हो शाक में, भावता नहीं है वो, है ना। वो घर में अगर गए और बोलेंगे कि रिंगणे का शाक है तो मोढ़ा बगाड़ेंगे, वो ये रिंगणे, है ना। ओके। व्हेन स्टेमेन आर अटैच टू पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है? मैं भूल गया, याद शक्ति नबड़ी हो गई है मैं। पेरियंथ क्या होता है? कौन बोल सकता है? याद कराइए चलिए पेरियंथ को। इसके पहले के लेक्चर में ही आया है पेरियंथ, पोरबंदर सेंटर। चलिए बोलिए पेरियंथ। सर आपका आवाज थोड़ा लेट मार रहा है। लेफ्ट मार रहा है तो राइट में आप बैठ जाइए। सर चिपक रहा है, चोट चोट के आ रहा है, चोट चोट। चोट चोट के आ रहा है, अच्छा। मैंने कहा लेफ्ट मार रहा है तो आप राइट पे बैठ जाइए, बैलेंस हो जाएगा ये। सभी सेंटर में ऐसा हो रहा है, चिपक चिपक के आ रहा है मेरा वॉइस, या परफेक्ट आ रहा है? परफेक्ट आ रहा है, ओके। तो पोरबंदर सेंटर, इट इज प्रॉब्लम आई थिंक फ्रॉम योर सेंटर्स, आई मीन कर देता हूँ है ना, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ओके, पेरियंथ क्या है? दैट इज माय क्वेश्चन। पेरियंथ क्या है? ये एलिक्स और कोरोला है ना, वो फ्यूज हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे। वेरी गुड। सो व्हेन दे हैव ओनली सिंगल स्ट्रक्चर, राइट, एट द आउटसाइड, बाहर की साइड सिंगल स्ट्रक्चर है, डबल नहीं है। आई मीन कैलिक्स एंड करोला दो स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों फ्यूज्ड है, मर्ज्ड है, तो उसको पेरियंथ बोलते हैं। तो सेपल की जगह पे पेरियंथ है, और उसके साथ अगर वो चिपक गया है, अटैच हो चुका है, कौन? स्टेमेन, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एपीफाइलस। ये एपीपेटलस है, पेटल के साथ, ये फाइलस है, फाइलस के साथ, राइट। तो दैट इज व्हाट फाउंड इन लिली प्लांट। पीड़ी प्लांट में नहीं, लिली प्लांट में होता है ये, है ना। तो ये ब्रिंजल के अंदर होगा, ये लिली के अंदर होगा, वाटर लिली जिसको बोलते हो आप, राइट। ऑल राइट, वन मोर एडिशनल पॉइंट। sometimes there are the the androecium is made up of many different means in number, I mean there are 5, maybe there are 10, maybe there are 15, maybe there are 20. So it is poly, I mean poly, कितने सारे होते हैं, है ना। तो जब वो इतने सारे होते हैं, तब either it has to remain free or it has to remain attached with each other. तो अगर वो पोली, यहां पे पोली, उसके बाद एक जो पोस्ट फिक्स होगा, एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम, तो पोली एंड एंड्रोशियम, तो पोली एंड्रस ऐसा नाम दिया गया है उसको, राइट। तो वो एक खास याद रखना है, पोली एंड्रस स्ट्रक्चर। पोली एंड्रस का मतलब क्या है? मैनी क्या? स्टेमेन्स। अगर कितने सारे स्टेमेन है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस दो टाइप के हो सकते हैं, राइट, आइदर फ्री और अटैच्ड विथ ईच अदर।
अगर अटैच्ड है, इफ द स्टेमेन आर यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं, अटैच्ड है, इट इज कॉल्ड सिनएंड्रस, सीन અને एंड्रस, सिनएंड्रस, सिन मतलब जॉइंड, ग्रुप्ड, सिनएंड्रस बोलते हैं उसको। अगर वो सिनएंड्रस है तो उसके 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, 3 डिफरेंट टाइप्स है। जो ग्रुप बना है वो ग्रुप सिंगल है, राइट, सिंगल ग्रुप है, एक ही गुच्छा है। गुच्छे में किसको पता चलता है, गुच्छा, गुच्छा किसको बोलते हैं, गुच्छा, ओके, सबको पता चल गया ना, ओके। सो एक ही बंच है, इन शॉर्ट। अपने इंग्लिश मीडियम हो आप तो मुझे इंग्लिश वर्ड यूज करना पड़ेगा, सिंगल बंच है ना। तो अगर सिंगल बंच बनता है ना तो उसको हम बोलेंगे मोनो एडी एल्फस, मोनो एड एल्फस, मोनो एडेल्फस। प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा रहा हूं परफेक्टली, ताकि मिस्टेक ना हो। मोनो एडेल्फस, मोनो एडेल्फस। अगर 2 ग्रुप है, डाई एडेल्फस, 2 ग्रुप है, डाई एडेल्फस, 2 से ज्यादा है, पोली एडेल्फस, 2 से ज्यादा है, पोली एडेल्फस। देखिए ये फर्स्ट नंबर का आपके सामने जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सिंगल बंच है, सिंगल बंच है, मोनो एडेल्फस है। ये यूजुअली देखने को मिलेगा आपको कहां पे, जासूद, देखा है ना, राइट, चाइना रोज बोलते हैं उसको, जासूद, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो सेकंड नंबर का पिक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पी प्लांट का है, पी प्लांट का, राइट, उसमें आपको मिलेगा डाइडेल्फस, डाइएडेल्फस, 2 है उसमें, टोटल 10 होते हैं, 9+1 स्ट्रक्चर है वो, मींस 9 का एक बंच है और एक सिंगल छुट्टा है, तो टोटल 10 में से 9+1 है। तो एक ये बड़ा गुच्छा है, ये रहा इसमें, बराबर, सॉरी, ये रहा यहां पे, ये ग्रुप ऑफ 9 है, और एक सिंगल है, ये सिंगल है, तो टोटल 10 है। एक 9 का ग्रुप है और एक सिंगल है, टोटल 10 है। और ये उसमें काफी सारे हैं, यहाँ पे इफ यू सी हियर, ये रहा, यहाँ पे काफी सारे हैं, ये रहे काफी सारे, देयर आर मेनी स्मॉल ग्रुप्स, so it is polyadelphous. Okay, so diadelphous pea plant, polyadelphous citrus, नींबू, ऑरेंज, सभी में ऐसे ही होता है फ्लावर्स में। Alright, now comes last point of view regarding to your structure of stamen. तो स्टेमेन जो एंड्रोशियम की अरेंजमेंट होती है, यूजुअली ऑल द स्टेमेन्स हैव द इक्वल लेंथ ऑफ इट्स फिलामेंट। उसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट की लेंथ यूजुअली इक्वल ही होती है, बट देर आर मेनी फ्लावर्स, उसमें उसके फिलामेंट जो होते हैं ना, उसकी हाइट या तो कम होगी या अनइक्वल होती है, अनइक्वल। So there may be a variation in the length of filament within a flower. कोई एक फ्लावर में स्टेमेन की जो लेंथ होगी उसमें वेरिएबिलिटी है, अलग अलग हाइट है। अगर ऐसा है तो ऐसे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे सेट है, एक का नाम है साल्विया, एक का नाम है मस्टर्ड। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं जिसमें उसके एंड्रोशियम के अंदर स्टेमेन के फिलामेंट की हाइट जो है वो या तो कम या तो ज्यादा अनइक्वल होगी।
Okay, so that is what we have to learn about the एंड्रोइशियम, जो हमने खत्म किया वो. अब जो बात आएगी वो आएगी गाइनेशियम की. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग, कि जब भी दो डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात आएगी तो ऑलवेज सिंपल स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है और ऑलवेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होता है. उसका सिंपल मोस्ट रीजन ये है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके लिए जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की. तो यहां पे विथ रेफरेंस टू नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 फंक्शन, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी गाइनेशियम के अंदर कंपेयर टू एंड्रोशियम. बराबर है. सो ये एक चीज, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू keep in your mind, and then we are starting discussing the gynoecium. So as androecium is to be considered as male reproductive part, gynoecium has to be considered as female reproductive part of the flower, right? तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको हम बोलते हैं गाइनेशियम. गाइनेशियम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट क्या है? पिस्टिल. क्या है? पिस्तौल नहीं, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल. तो जैसे एंथर फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, वैसे पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है. राइट? ओके, फाइन. चलिए, तो हम बात करते हैं अभी गाइनेशियम की. सो गाइनेशियम इज made up of pistil. I repeat, gynoecium is made up of pistil. ये है pistil, which is a female reproductive part of flower and is made up of one or more carpels. Right? One or more carpel. Okay. तो पिस्टिल जिसके पार्ट है कार्पेल, गाइनेशियम इज पिस्टिल एंड पिस्टिल का पार्ट है कार्पेल. तो कार्पेल क्या है? तो कार्पेल, जैसे हमने एंथर की बात की थी, एंथर के दो कंपोनेंट हमने देखे थे. एक था फिलामेंट, दूसरा क्या? फिलामेंट मतलब स्टॉक, और दूसरा क्या था? ऊपर का स्ट्रक्चर, एंथर. तो यहां पे 3 पार्ट है ऐसे. एक का नाम है स्टिग्मा, एक का नाम है स्टाइल, एक में ओवरी. 3 पार्ट है. तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रखूं, ये रहा, यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा जो है, ये पूरा पार्ट, ये है आपका गाइनोशियम, या तो हम बोलेंगे इसको पिस्टिल. ये पिस्टिल के अंदर ये सिंगल कंपोनेंट है जिसके अंदर ये एक स्टिग्मा है जो ऊपर का पार्ट है, ये बीच का पार्ट है पूरा, ये इसको बोलते हैं सेकंड स्टाइल, और इसका बेस जो होता है ये बड़ा सा ऐसे फूला हुआ मस्त, उसको हम बोलते हैं थर्ड कंपोनेंट. दैट इज कॉल्ड ओवेरी. ये ओवेरी है, थर्ड कंपोनेंट. तो इट हैज 3 कंपोनेंट. नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 ओवेरी. ये 3 कंपोनेंट से बना है कोई भी पिस्टिल या तो कोई भी गाइनेशियम. रेडी? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट है? ऑल राइट. तो 1 by 1 लेट अस सी अबाउट देम. ये तीनों स्ट्रक्चर को यहां से वेल डिफाइंड मोड पे हम आते हैं. पहला पार्ट है स्टिग्मा. तो अगेन आई एम कमिंग टू द डायग्राम. ये टॉप का जो रीजियन है, टॉप का, कोई भी पिस्टिल या कोई भी गाइनेशियम जो है किससे बना है? कार्पेल. तो ये कार्पेल, ये सिंगल कार्पेल, उसका टॉप का जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा.
it is usually the tip of style and is the receptive surface for pollen grain. अभी मैंने बात की थी 20 मिनट पहले, बिफोर 20 मिनट, कि कोई भी पोलन ग्रेन जब उड़ती उड़ती आती है, फ्लावर के ऊपर गिरेगी, तो फ्लावर उसको एक्सेप्ट या तो करेगा या तो नहीं करेगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी है, स्टिग्मा की. पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर पड़ेगा, स्टिग्मा हैज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन. टू रिमेंबर दी, पोलन ग्रेन को ओनली रिसीव करता है ऐसा नहीं है. आई सेड यू अर्लियर, रिकॉग्नाइज भी करता है. वो भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसके पास रिकॉग्नाइज करने की. इट कैन आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पोलन ग्रेन. डू रिमेंबर दिस. ओके. बी, स्टाइल. ओके, स्टाइल इज द अदर सेकंड पार्ट. ये जो है, ये बीच का पार्ट, ये इसको हम बोलेंगे स्टाइल. तो स्टाइल में रहने का, किस में रहने का? स्टाइल में. किसको? किसको स्टाइल में रहने का? अपने को नहीं, अपने तो डॉक्टर बनने वाले हैं, स्टाइल में थोड़े ही न रहेंगे. ऑपरेशन कौन करेगा स्टाइल में रहने जाए, है ना? तो स्टाइल में किसको रहने का? स्टाइल में पोलन ट्यूब को रहने का है. किसको रहने का है? पोलन ट्यूब को. राइट? तो पोलन ट्यूब वर्ड नया आया है, अभी के अभी ये वर्ड ने जन्म लिया है आपके ब्रेन के अंदर, पोलन ट्यूब. ओके, बिफोर 20 मिनट्स आई टोल्ड यू कि स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज्ड हो गई तो वो जर्मिनेट होगी, ऐसा बोला था. याद है? किसको याद है? एंड्रेस करो जी. ऑल राइट. ओके, जर्मिनेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब. क्या बोलते हैं उसको? पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब जिसके अंदर घुसेगी वो स्ट्रक्चर है ये स्टाइल. तो स्टाइल में किसको रहने का है? पोलन ट्यूब को रहने का है. रेडी? अब समझ में आ गई बात मैंने जो समझाई वो? ओके. सो इलोंगेटेड ट्यूब है कौन? स्टाइल. इलोंगेटेड ट्यूब है दैट कनेक्ट ओवरी टू द स्टिग्मा. ये ओवरी है, ओवरी और स्टिग्मा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बनाएगा? स्टाइल. तो स्टाइल इज दैट कंपोनेंट. राइट? ओके. थर्ड वन इज द ओवरी. अब आ गई जान इस पूरे स्ट्रक्चर की. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ओवरी. मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये. राइट? ओवरी. सो it is enlarged basal part on which the style lies. ये स्टाइल जिसके ऊपर खड़ा है वो enlarge यानी कि फूला हुआ पार्ट है ये. Each ovary bear one or more ovules which are attached to the flat cushion like placenta. ओ बापा, कितने सारे वर्ड वन बाय वन माथे गिर रहे हैं अपने, है ना? चलिए, अब सिंपल से लॉजिकल फॉर्मेट में मैं सब कुछ समझा देता हूं आपको. राइट? तो उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए होगा, तभी मैं आपको वो क्लियर कट समझा पाऊंगा. तो चलिए मैं ब्लैक बोर्ड के साथ आता हूं आप. तो सही फॉर एग्जांपल ये है अपना स्टिग्मा, ये हो गया अपना स्टाइल, और ये अपनी होने वाली है ओवरी. राइट? ओवरी के अंदर एक बड़ा सा चेम्बर होता है, ये ऐसा चेम्बर होता है, खाली स्पेस है अंदर, चेम्बर है. राइट? अब उसके अंदर मुझे फिट करना है जिसको, वो है ओव्यूल. चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए, इसको मुझे फिट करना है, ओव्यूल्स को. तो ये स्ट्रक्चर अपने लिए नया है या पुराना है? किसको पता है ओव्यूल का मतलब? ओव्यूल का मतलब किसको किसको पता है? हैंड रेज करना है. ओके, पोरबंदर सेंटर में पता है, जामनगर सेंटर में पता है, और किसी सेंटर में पता है भैया बहनों? ओके, सूरत एसयूवी में पता है. चलिए गुड. ओव्यूल का नाम
ओके, नडियाद सेंटर बी ग्रुप में पता है, चलिए गुड। और किसी सेंटर में नहीं पता है? ओके, चलिए मैं समझा देता हूं। तो आप सब केयरफुली सुनिएगा। ओव्यूल का मतलब मैं समझा रहा हूं। आई रिपीट, मैं ओव्यूल का मतलब समझा रहा हूं, राइट? तो ओव्यूल अपनी ओवरी, ये जो है ना ओवेरी है, ये ओवेरी का ये ऐसा कंपोनेंट है, ओवेरी का वो ऐसा पार्ट है जो बोला जाएगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ ओवरी। अब इसका काम क्या होगा? टू प्रोड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेल गेमेटोफाइट का मतलब था मेल गेमेटोफाइट, देखिए मेल गेमेटोफाइट, ये जो था अपने लिए पोलन ग्रेन था, क्योंकि उसमें से बाद में मेल गेमेट बनने वाला है, राइट? तो फीमेल गेमेटोफाइट जो है मींस जिसमें से फीमेल गेमीट बनेगा, राइट? जिसमें से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट कौन बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा। कौन बनाएगा? ओव्यूल। और ये फीमेल गेमेटोफाइट का भी एक नाम है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। फीमेल गेमेटोफाइट का जो नाम है, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियोसेक, राइट? मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन था, किसमें बनता था? पोलन ग्रेन, पोलन सेक में बनता था। याद आ गया? किसमें बनता था? पोलन सेक में बनता था। तो यहां पे एम्ब्रियोसेक ऐसा नाम आपको याद रखना। बट एम्ब्रियोसेक इज फीमेल गेमेटोफाइट, बट वहां पे पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा? फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियोसेक बने। तो एम्ब्रियोसेक क्या करेगा? वो बनाएगा फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है? एग सेल। So that will be produced into embryo sac later on, right? embryo sac के अंदर क्या बनने वाला है? एग सेल्स, राइट? अब मैं पूरी हेरारकी का मतलब क्या, स्टेप वाइज अरेंजमेंट समझा देता हूं आपको फिर से, राइट? पहला आएगा गाइनेशियम, दैट इज पिस्टिल, राइट? पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट क्या है? ये इसको क्या बोलेंगे हम? कौन बोलेगा? पिस्टिल का ये सिंपल कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कम ऑन, जामनगर। Carpel, sir. ओके, कार्पेल सर, राइट? कार्पेल, कार्पेल के तीन पार्ट, ये ऊपर स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, इसका ओवरी। सो कार्पेल हैव ओवेरी, कार्पेल हैव ओवेरी। ओके, ovary has ovules, ovary has ovules, ovules will develop embryo sac, embryo sac will produce female gametes,
दैट इज एग, oocyte या एग। तो ये हेरारकी आपके ब्रेन में भूले बगैर फिट रहनी चाहिए, अदरवाइज इट विल गोइंग टू बी अ मैशअप, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अदरवाइज ऑलरेडी है, थर्ड चैप्टर का जो पूरा, मुझे पता है सब कंफ्यूजन स्टेट में ही हो, यू डोंट नो। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? तो इसको अब इसके साथ जोड़ के कंपेयर करके देखना, इजीली आप समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। कंपेयर करना आना चाहिए उसके लिए। डू स्टार्ट कंपेयरिंग दिस, डू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वे, so it will help you to get more clear idea about that. Okay, now may I come to the process of arrangement of ovule inside the ovary. अब ओव्यूल को मुझे कहां पे रखना है? ओव्यूल को मुझे किसके ऊपर चिपकाना है? ओवरी के ऊपर चिपकाना है। एम आई वेरी करेक्ट? से फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ मदर, तो मदर की वुम्ब है, राइट? उसके ऊपर आप है, आप बेबी, राइट? तो मदर की वुम्ब में बेबी जहां पे चिपकता है, जहां पे जॉइंट होता है, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पोरबंदर? placenta, दैट्स इट। यहां पे इसको प्लेसेंटा बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। तो थ्रू प्लेसेंटा ओव्यूल्स आर गेटिंग अटैच्ड टू द ओवरी। सिंपल। अभी कभी भी ये भूलने वाला पार्ट है ही नहीं, वेरी इजी टू रिमेंबर। क्यों? हमने इसके एग्जाम्पल से सुना। तो जैसे हम अपनी मदर के साथ चिपके हैं, वैसे ओव्यूल ओवरी के अंदर जिस सरफेस से चिपका हुआ है, उस सरफेस को बोलेंगे हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज सरफेस, स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर जो होता है ना, हम हमारे डूटी में से जो निकलता है ना स्ट्रक्चर, उसको उसको प्लेसेंटा नहीं बोलते, उसको बोलते अम्बेलिकल कॉर्ड। वो अम्बेलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा कहां पे होता है? वुम्ब की सरफेस के ऊपर होता है प्लेसेंटा, और अम्बेलिकल कॉर्ड वहां पे चिपकता है ऐसे करके। तो डोंट मिसअंडरस्टूड लाइक दैट, राइट? ओके, थम्स अप। All right, good. So placenta is a surface. Do remember these. Say for example, मैंने यहां पे एक सरफेस बना दी है, मिडल एक्सिस बनाई। मिडल एक्सिस ये मैंने बनाया प्लेसेंटा। क्या बनाया मैंने? प्लेसेंटा। उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल ये एक ओव्यूल रखा, ये दूसरा ओव्यूल रखा, ये एक और ओव्यूल रखा, और ये एक ओव्यूल रखा। ऐसे 4 ओव्यूल्स मैंने यहां पे फिट किए। तो जहां पे ओव्यूल चिपका है ये प्लेसेंटा हो गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ दिस। रेडी? गुड। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बुक के अंदर होगा, आपको मिलेगा। तो यहां पे एग्जैक्टली सेम डायग्राम है। बीच का जो है वो प्लेसेंटा है, और उसमें से साइड में से जो निकले है वो ओव्यूल्स है। देखिए, ओव्यूल्स के लिए जो वर्ड यूज किया है यहां पर, वो है मेगास्पोरेंजिया। मेगास वो माइक्रोस्पोरेंजिया था एंथर के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया। क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया। तो ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोरेंजिया जो है उसका नाम क्यों है? बिकॉज वो मेडअप ऑफ मेगास्पोर मदर सेल्स।
जो कि 2n डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल से बना है। इसके अंदर मदर सेल्स है बट मेगास्पोर मदर सेल, इसलिए उसका नाम पड़ा मेगास्पोरेंजिया। इसका ओव्यूल का। देयर आर मेनी मेगास्पोर मदर सेल, ऐसा नहीं होता है, बराबर है। मेगास्पोर मदर सेल यहां पे सिर्फ एक ही बनता है, डू रिमेंबर दिस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंगल, वन, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। ये इसकी स्पेशलिटी है, राइट। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें मदर सेल सिंगल बनता है। एंथर के अंदर जितने सेल होंगे वो सभी मदर सेल बन जाएंगे और सभी में से 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। बट यहां पे मेगास्पोरेंजिया अगर की बात करें, उसमें जितने सेल का ग्रुप है ना, उसमें से सिर्फ एक ही सेल ऐसा होगा सुपर स्पेशलिटी वाला जो बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। सभी नहीं बनेंगे, एक ही होगा, डिफरेंशिएट होगा। इसका मियोसिस होगा, इसका होगा मियोसिस और उसमें से बनेगा मेगास्पोर। क्या बनेगा? मेगास्पोर। ये मेगास्पोर ग्रोथ करेगा, ग्रोथ एंड डिवीजन। कैसे करेगा वो 12th में पढ़ेंगे। और उसमें से बनेगा एम्ब्रियो सैक। उसमें से बनेगा एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज द हायरार्की। डायरेक्टली ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक नहीं बनता है, उसमें काफी सारा, मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्शन ज्यादा होता है ऑलवेज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स पार्ट्स। तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। कोई भी ओव्यूल जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है मेगास्पोरेंजिया, उसके अंदर मदर सेल जो है, काफी सारे सेल में से एक ही मदर सेल बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल सिंगल बनता है, राइट। एंड वो सिंगल मियोसिस से 4 सेल प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट और नॉट। उसमें से फिर से एक ही सेल, यहां पे भी मैं सिंगल एक लिख रहा हूं, एक ही सेल मेगास्पोर बनेगा, बाकी के 3 डीनेचर हो जाएंगे। एक ही मेगास्पोर बनेगा और वही मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सैक में डेवलप होने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बाद ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है एग सेल। ये सब आपको 12th में पढ़ना है। यहां पे मैं ग्लांस यानी कि शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, उसमें डिटेल में आपको पढ़ना ही है फिर से एक बार, है ना। ओके so that's the structure. Okay, so it is the enlarged basal part on which the style lies. Each ovary bear one or more ovule which are attached to a flat cushion like structure called placenta. ये already हमने पढ़ लिया है, फाइन। ओके, अब बात आती है गाइनेशियम के स्पेशल स्ट्रक्चर्स की और स्पेशल एडेप्टेशंस की। सो अगर एक से ज्यादा कार्पेल्स है, एक से ज्यादा कार्पेल्स, जैसे हमने एक से ज्यादा स्टेमेन की बात की थी, वैसे सेम वे एक से ज्यादा अगर कार्पेल है तो ऐसे पिस्टिल या तो ऐसे गाइनेशियम को हम क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिलरी। अगर सिंगल है तो मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो पॉलीकार्पिलरी बोलेंगे।
पॉलीकार्पेलिक अगर है तो दो टाइप हो सकते हैं, या तो सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है या तो सब एक दूसरे से अलग है। बराबर है। ओवरी एक ही है, ओवरी एक ही है। अगर उसका सेक्शन लो, ओवरी का सेक्शन लो, राइट, और उसके अंदर एक से ज्यादा खाने आपको देखने को मिलेंगे। खाने मतलब कंपार्टमेंट्स। तो जितने कंपार्टमेंट, राइट, उतनी कार्पेल्स। एक खाना मतलब एक कंपार्टमेंट, राइट। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा आपको, इफ यू अलाउ मी टू। समझाऊं? ओके, चलिए। मैं आपको एक टमेटा देता हूं। टमेटा में समझ में आता है ना हिंदी में? ये टमेटा देता हूं, टोमेटोज, है ना। टोमेटोज अगर आपको मैं दूं, तो टोमेटो को सही फॉर एग्जांपल, ये बोतल नहीं है, टोमेटो है, तो बीच में से ऐसे काटा, बीच में से, ऊपर से ऐसा फाड़िया नहीं किया हो, बीच में से ऐसे काटा, और इसको मैंने ऐसे देखिए काट दिया, ये काट दिया, राइट। उसको मैं यहां से देखूंगा, अभी यहां से, तो उसके अंदर दो तीन ये आपको कंपार्टमेंट खाने देखने को मिलते हैं। देखा है ना ऐसा? बस उस खाने की बात कर रहा हूं, उस कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो सही फॉर एग्जाम्पल ऐसे काटा और उसमें दो कंपार्टमेंट है, इसका मतलब है ये कार्पेल्स कितने हैं? 2 कार्पेल्स। अगर 3 खाने उसके अंदर है तो कितने कार्पेल है? 3 कार्पेल। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। गुड। तो ये होती है पॉलीकार्पिलरी पिस्टिल। ऐसा पिस्टिल जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्पेल्स है। दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो छुट्टे छुट्टे हैं और या तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। टमेटे के अंदर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। मगर अगर मैं ऑरेंज की पिल्स को दूर करूं, ऑरेंज, तो उसके अंदर वो जो निकलेगा ना कार्पेल्स, जिसको हम खाते हैं ना, वो उसके कार्पेल ही है। तो वो जब निकलेगा तो वो तो फ्यूज्ड है या छुट्टा छुट्टा है? छुट्टा छुट्टा है ना। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? ऑल राइट। तो दो टाइप है आपके पास, देखिए, या तो एपोकार्पस है या तो सिंकार्पस है, राइट। एपोकार्पस मतलब अलग अलग है, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। देखिए, कार्पेल्स आर फ्री। एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज। मैंने क्या समझाया आपको? जो खाने में अच्छा लगता है वो ऑरेंज, है ना। सिंकार्पस, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, मस्टर्ड एंड टोमेटो। टोमेटो तो मैंने बोला था आपको, है ना। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट? ऑल राइट, गुड। अब आती है कंफ्यूजन वाली पार्ट। कंफ्यूजन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए इतना इंपॉर्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू नीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। नाम के ऊपर से उसका काम पता चल गया होगा। प्लेसेंटा की अरेंजमेंट, उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। आई रिपीट, प्लेसेंटा की अरेंजमेंट जो होती है ओवेरी के अंदर या तो फ्रूट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा क्या है वो हमें पता है। प्लेसेंटा इज अ पार्ट, इट इज सरफेस, इट इज एक्सिस ऑन विच द ओव्यूल्स आर गेटिंग अटैच्ड। एम आई वेरी करेक्ट? थम्स अप कीजिए। चलिए, ऑल राइट। सो प्लेसेंटेशन जो है उसके टाइप्स यहां पे जो दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली हम उसे एक वन बाय वन विथ एन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। विथ एन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं सोल्व करने वाले हैं, राइट। So it is the arrangement of ovule on the placenta within the ovary. And 5 टाइप उसके जो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक है। सबसे पहला है मार्जिनल, सेकंड है एक्साइल, थर्ड है पैराइटल, फोर्थ है फ्री सेंट्रल एंड फिफ्थ है बेजल। इजी है, नाम के ऊपर से आपको याद रह जाने वाला है, चिंता मत करिएगा। इट इज माय गारंटी कि आप क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको ये सब नाम पता होगा, सबका मतलब पता होगा और सबके एग्जाम्पल भी पता, राइट। सो कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है, अगर समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट वन, मार्जिनल। सो इफ यू सी देयर आर मेनी फ्रूट्स
देर आर मेनी फ्रूट्स, जिसके फ्रूट को हम सिंग बोलते हैं। सिंग, वो ये सिंग नहीं है ना, वटाणा की सिंग जो पीछे है मेरे, दिखाई दे रही है दोनों साइड, वटाणा की सिंग होती है ना। दूसरी ऐसी सिंग का एग्जाम्पल है आपके पास? दूसरी ऐसी कोई सिंग जिसका फ्रूट सिंग हो? कोई एग्जाम्पल? अहमदाबाद सेंटर, सबको एक एक चांस दूंगा मैं, चिंता मत करिए। जिसने हैंड रेज किया है सबको चांस मिलेगा। अहमदाबाद सेंटर फर्स्ट। ચાલેગા, આપણે તો ગુજરાતી જ છીએ ને ભાઈ। તુવેર, ગુડ, ઓકે। તુવેર ટોઠા ખાઈ ખાઈને પછી તુવેર જ યાદ આવે ને, સાચી જ વાત છે ને, હે ને? ઓકે, ચાલો પોરબંદર, હમણાં સિંગ બોલશે મારે, સારી સિંગ। હા, વાલ, અચ્છા વાલ, હશ, ઓકે ગુડ, વાલ, ઓકે। વલસાડ સેન્ટર, વલસાડ, પાપડી, ગુડ। જામનગર, Sir, drumsticks. ड्रमस्टिक्स, ओके, राइट, परफेक्ट, है ना। सो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर मैं बात करूं कि ऐसे फ्रूट्स जिसमें सिंग होती है, राइट, उसका नाम है लेग्यूम। वो फ्रूट का नाम है लेग्यूम फ्रूट। क्या नाम है? लेग्यूम फ्रूट। तो ऐसे प्लांट्स को यूजुअली हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। आई रिपीट, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं हम उसको। तो जितने भी कठोर पल्सिस आप खाते हो, आपके फूड में जो पल्सिस होते हैं, अब जितने भी आपने नाम लिए एक्सेप्ट ड्रमस्टिक्स, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ड्रमस्टिक्स, सभी जितने भी नाम आपने गिनवाए सभी क्या है? लेग्यूम्स। क्या है? लेग्यूम्स, कठोर पल्सिस है। तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ये स्पेशलिटी है। तो सिंग यूजुअली क्या होती है? जिसको आप काटोगे, दो भाग में बांटोगे, तो उसमें दो में से एक धार के ऊपर ये चिपका हुआ मिलेगा आपको, उसका बीज। एम आई करेक्ट? राइट। ड्रमस्टिक को मैंने मुंझाते मुंझाते हाना इसलिए बोला कि वो इसका पार्ट नहीं है, उसको सिंग बोलते हैं वो, राइट, बट उसके ये मार्जिनल नहीं है, वो उसमें सेंटर में बीज होते हैं। एम आई वेरी करेक्ट? तो ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, डू रिमेंबर दिस, है ना। तो जिसका सिंग फड़ है, जिसका दो ही पार्ट में वो छुट्टा पड़ता है, दो ही पार्ट में, है ना। ड्रमस्टिक 3 पार्ट में करता है, ड्रमस्टिक 3 पार्ट में अलग होता है, पता है ना। तो वो इसलिए सिंग फड़ नहीं बोलते उसको, एक्चुअली लेग्यूम नहीं बोलेंगे उसको, है ना। ऑल राइट। सो उसमें दो में से एक धार में, तो यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा, यहां पे ये रियल फोटोग्राफ है, देखिए, है ना। तो ये सरफेस के ऊपर नहीं चिपका, ये सरफेस के ऊपर, तो ये है सरफेस जिसके ऊपर ये चिपका हुआ है, मार्जिन ये है, तो इसलिए उसको मार्जिनल बोलते हैं, सिंपल। मार्जिन के ऊपर प्लेसेंटा है, अगर मार्जिन के ऊपर प्लेसेंटा है तो उस प्लेसेंटेशन को मार्जिनल बोलते हैं। और पी प्लांट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ऑल लेग्यूम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। चलिए, आई होप आई एम वेरी क्लियर, थम्स अप कर दीजिए। ऑल राइट, गुड गुड। टमेटो आयो पासो, है ना। तो ये तो पता चल ही गया। देखिए, इसका अगर क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, क्रॉस सेक्शन लिया, क्या लिया मैंने? इसका क्रॉस सेक्शन, तो बीच का ये है सेंट्रल एक्सिस, ये है सेंट्रल एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर ये प्लेसेंटेशन है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा, ये उसके सीड्स है। तो सीड्स कहां पे लगे हैं?
ये प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा कहाँ पे जॉइंट है? एक्सिस के ऊपर। तो एक्सिस के ऊपर प्लेसेंटा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे? एक्साइल प्लेसेंटेशन। वो सेंटर में ही होता है और सेंटर के टूवर्ड सेंटर ही वो बीज जो है चिपके हुए होते हैं उसमें। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक इसकी स्पेशलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, दी नहीं हुई है इसमें। अगर दी है तो भी आपको दिखे। देखिए 1 2 3 कंपार्टमेंट मिला आपको, उसमें 3 कंपार्टमेंट मिला आपको, यस और नो? तो ये ऑलवेज पॉलीकार्पिलरी होती है। कैसी होती है? पॉलीकार्पिलरी। दूसरा, वो कार्पेल एक दूसरे के साथ देखिए जॉइंड है। सिंकार्पस पॉलीकार्पिनली ही होती है ये कंपल्सरी एक्साइल में। ये एक रूल है उसका, वो आपको याद रखना है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन हियर। देखिए, हियर द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इन इट विच इज मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर का मतलब ही ऐसा होता है। मल्टीलोक्यूलर એટલે खाना, कंपार्टमेंट्स। तो मैंने कंपार्टमेंट में आपको क्या समझाया था? कार्पेल्स एक से ज्यादा होने चाहिए और सिंकार्पस होना चाहिए। याद आ गया? तो दैट इज अ रूल। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? थम्स अप। चलिए, थर्ड नंबर में आता हूं मैं, प्लेसेंटेशन नंबर 3, राइट। काकड़ी किसने खाई है? काकड़ी, कुकुम्बर बापा, कुकुम्बर, इंग्लिश मीडियम। ओके, गुड, ऑल राइट। चलिए, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं उसका स्ट्रक्चर। जब आप उसको स्लाइस करोगे, स्लाइस, राइट, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑलमोस्ट ऐसा होगा। ऑलमोस्ट। ये ककुम्बर नहीं है, प्लीज। आई एम नॉट सेइंग दिस इज ककुम्बर। ये ककुम्बर जैसा तो है ही स्ट्रक्चर इसका। तो अगर मैं स्लाइस कर रहा हूं इसका, तो ये 1, ये 2 और ये 3 इंटरनल सरफेस, यानी कि मार्जिन, इंटरनल जो सरफेस, इंटरनल स्किन, स्किन नॉट मार्जिन, एक्चुअली स्किन, इंटरनल जो स्किन होती है, इंटरनल स्किन, यहां पे ये प्लेसेंटा है। ये 1, ये 2 और ये 3 प्लेसेंटा है। और यहां पे बीज ऐसे चिपके हुए, देखिए ऐसे, ऐसे। तो काकड़ी में भी ऐसा ही होता है, सॉरी, कुकुम्बर में भी ऐसा ही होता है ना? कुकुम्बर में भी ऐसा ही होता है। सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। ये है अपना 1 2 3 पराइटल, स्किन के ऊपर, इंटरनल स्किन के ऊपर है, इसलिए इसको बोलेंगे पराइटल। क्या बोलेंगे? पराइटल। जितने भी वेला, वेला के शाक भाजी होते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के, सब में यही होता है। दूधी, गलका, कारेला, ये रहा कारेला, उसमें भी ऐसा ही होता है, राइट। काकड़ी, सब में ऐसा ही होता है। तो ये अभी धीरे 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 आपको ये सब इंफॉर्मेशन जो आप गेन कर रहे हो, सीख रहे हो, अप्लाई करना है। आप घर पे जब साग भाजी वो अपनी मम्मी जब करती है ना, तो उसको काट के देखो कि इसमें क्या है अंदर। आपको देखने को मिला 4-5 में से एक आध स्पेशल भी होगा जो यहाँ पे नहीं है, ऐसा भी होगा, हो सकता है। बट अगर आपने पढ़ा ऐसा है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ दैट्स द वन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। वो लाइव एग्जाम्पल्स है, राइट। सो ये है पराइटल। तो हियर द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरीफेरल सरफेस। पेरीफेरल सरफेस के ऊपर है, इसलिए उसका नाम क्या है? पराइटल, राइट।
ओवरी इज ओनली वन चैम्बर्ड, ओनली सिंगल चैम्बर ही है, बट लगेगा क्या आपको पता है? इसका एक कंपार्टमेंट ऐसा है, दूसरा कंपार्टमेंट ऐसा है, तीसरा कंपार्टमेंट, आपको लगेगा कि ये 3 कंपार्टमेंट है, काकड़ी में से ऐसा लगेगा आपको, बट कंपार्टमेंट होता नहीं है, फॉल्स कंपार्टमेंट है, स्यूडो कंपार्टमेंट। जैसे अमीबा में लेग होता नहीं है, स्यूडोपोडिया बनता है, स्यूडो। तो ये कंपार्टमेंट जो है ना, स्यूडो कंपार्टमेंट है। तो डू रिमेंबर, उसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। इट इज सिंगल चैम्बर्ड ओवरी बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम बन जाता है, दिखता है कंपार्टमेंट, है नहीं कंपार्टमेंट, है ना। डू रिमेंबर दिस, ये उसकी स्पेशलिटी है, या पराइटल की ये स्पेशलिटी है, फॉल्स सेप्टम क्रिएट होता है। अब हुआ फ्री सेंट्रल, आई रिपीट, फ्री सेंट्रल। इसमें से वाटरमेलन किसको भावता है? वाटरमेलन, ओके। इसमें बी कहां होता है? छुट्टे, सेंटर में, छुट्टे सेंटर से लेके पेरीफेरी में ऐसे स्प्रेड होते हैं। आई एम करेक्ट और नॉट? बस उसी को बोलते हैं फ्री फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, सिंपल। बेस्ट एग्जाम्पल, कभी नहीं भूलने वाला, है ना। तो अगर तरबूज को ऐसे बीच में से स्लाइस करोगे तो उसका जो अरेंजमेंट ऑफ सीड होगा, फ्रॉम द सेंटर टू द पेरीफेरी, तो सेंटर से वो स्प्रेड होके पेरीफेरी तक निकलते हैं, तो इट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। वहां पे भी सेम, सिंगल, एक ही लोक्यूल वाला ओवरी है, राइट। कंपार्टमेंट नहीं होंगे उसमें। तो हियर ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस विथ सेप्टा आर एब्सेंट, सेप्टा है ही नहीं, रेडी, ओके। डायंथस एंड प्रिमरोज, ये एग्जाम्पल यहां पे शेयर किया है, डायंथस एंड प्रिमरोज, ये 2 एग्जाम्पल यहां पे शेयर किए हैं। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया फ्री सेंट्रल का, वो कौन सा है? वाटरमेलन। दूसरा कोई याद है ऐसा कुछ? फ्री सेंट्रल का दूसरा एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आता है, दिमाग है, हाँ सर, ड्रैगन फ्रूट। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट एग्जाम्पल, ड्रैगन फ्रूट, जिसने भी दिया गुड एग्जाम्पल। सूरत एसयूवी, यस, सूरत एसयूवी, यस, टोल्ड। लेमन, ओके, वलसाड, गुआवा, राइट, ओके। जामनगर, अनम्यूट થવું પડે બેટા। किवी सर, किवी। कीवी सर, ओके। एंड पोरबंदर, सर वावा, ओके, मस्कमेलन, यस, मस्क मेलन, कोकोनट इंक्लूड होगा? हाँ, दाड़म दाड़म इंक्लूड था सर? दाड़म नो, क्योंकि उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें कंपार्टमेंट होते हैं 3। ऑल राइट, यस सर, कैप्सिकम। नो, फ्री सेंट्रल, कैप्सिकम फ्री सेंट्रल। एक्चुअली कैप्सिकम फ्री सेंट्रल में आएगा, सभी मिर्चे नहीं आएंगे, है ना, सभी टाइप के चिलीज नहीं आएंगे, कैप्सिकम आएगा। डू रिमेंबर, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि चिल्ली का एक जो कैप्सिकम है उसको आप फ्री सेंट्रल में ले सकते हो,
बट दूसरी टाइप की चिली अपनी जो लंबी लंबी चिली नहीं होती है उसको अगर काटो तो उसमें पराइटल होता है, पराइटल साइड में होता है ना, तो वो एक एक्सेप्शन है. यस, वलसाड सेंटर बेटा. सीताफल सीताफल, ओके. अहमदाबाद सेंटर. ओके, गुड. ચાલો હવે કેરી કોણે ખાધી છે? મેંગો. મેંગો. હા સર. કોણ છે સર વાળા? મારે કે હા, ओके. यस स्ट्रॉबेरी नहीं होगी. सर, स्ट्रॉबेरी नहीं होगी, नहीं. ओके. ओके. लास्ट, मैंगो, कैरी, ये वाला बेजल एक ही होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल सीड होता है. कैरी को खा के गोटला तोड़ोगे तो उसमें से एक ही वो निकलेगा गोटला. ये खबर है ना, पता है ना, अंदर से वो छोटी गोटली निकलती है, मुखवास में यूज करते हैं हम उसको. याद आ गया? तो वो ऐसा होता है. से फॉर एग्जाम्पल ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैरी का अंदर से निकला हुआ गोटला है. अगर उसको तोड़ोगे तो उसमें से ये छोटा सा वो मुखवास वाला गोटली निकलेगी, छोटी सी. तो ये होगा आपका लास्ट में बेजल. बेजल का मतलब क्या होता है? बेस में चिपका हुआ. देखिए ये है पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर, सिंगल उसका लोक्यूल है, सिंगल खाना है उसका, उसके बेस के साथ ये चिपका है. कौन? तो कि ओव्यूल था पहले, अब सीड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेजल. राइट. तो ये जो है ये पार्ट, ये उसका प्लेसेंटा हो गया. तो प्लेसेंटा कहाँ पे है? बेस के अंदर है. बेस इज बिकमिंग प्लेसेंटा. यस, पोरबंदर सेंटर. सर वो लिली बदाम आ गया में इंक्लूड થાય. ફરીથી કહેતો બેટા. લીલી બદામ આવે યામાં ઇન્ક્લુડ થાય. લીલી બદામ, યસ, એ આમાં આવશે બેઝલમાં. યસ. જે તમે તોડો અને એમાંથી સિંગલ સીડ નીકળે ને, તોડો અને સિંગલ સીડ, તોડો અને સિંગલ સીડ, એમનેમ નહીં, તો એ આમાં જ આવશે બધા, કારણ કે એની ફરતેનું કવચ સ્ટ્રોંગ બની જશે. ડુ રિમેમ્બર દેટ, હે ને? ઓકે. સો હિયર placenta develops at the base of the ovary and single ovule is attached to it. Sunflower, marigold are the example. Sunflower and marigold which is given here as an example. ओके. अब इसमें आपको याद क्या रखना है? मैंने बोला था ना नीट में आएगा, राइट? तो उसके टाइप वर्सेस उसके एग्जाम्पल. आई रिपीट, टाइप वर्सेस उसके एग्जाम्पल, ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं. कंफ्यूज नहीं हो उस हिसाब से आपको उसको याद रखना. मैच दी फॉलोइंग में आते हैं ये क्वेश्चन. इसमें आते हैं मैच दी फॉलोइंग में. तो प्लीज माइंड इट वेरी वेल कि ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनने वाला है आपके नीट के लिए. ऑल राइट. जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, आई रिपीट, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कब होगा? पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा के ऊपर एस्टैब्लिश होगा, मेल गैमेट ट्रैवल करेगा ओव्यूल के अंदर, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओव्यूल सीड बनेगा. ओव्यूल क्या बनेगा? सीड बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एंड पूरा जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, इट इज गोइंग टू बी अ फ्रूट. उसके बाद उसमें से फ्रूट बनेगा. तो पहले होता है फ्लावर. फ्लावर के अंदर होता है एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. एंड्रोशियम फ्लावर का जो होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पड़ेगा, स्टिग्मा के अंदर जाएगा, ओव्यूल के अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा. जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओवरी जो है, ओवेरी, वो फ्रूट बन जाएगी. एंड उसके अंदर के ओव्यूल्स होते हैं ना, वो सीड बन जाएंगे. राइट. तो दैट्स द लास्ट लाइन ऑफ टुडेज क्लास. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स विल डेवलप इनटू सीड एंड पूरा जो ओवरी है दैट विल बी फ्रूट.
बट वो कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब, बाकी नहीं। तो अपना नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो होगा अबाउट सीड एंड फ्रूट इनटू नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दिवाली। आई विश यू वेरी वेरी गुड જોયફુલ મસ્ત મસ્ત જાડિયા પાડિયા થઈ જાય એટલું બધું ખાઈ લેજો. એન્જોય યોર દિવાળી, હે ને? હેવ એ વેરી નાઇસ દિવાળી, વેરી કલરફુલ દિવાળી, વેરી જોયફુલ દિવાળી, એન્ડ હેવ એ હેપી ન્યુ યર ઇન એડવાન્સ. Happy Diwali, sir. Happy Diwali, sir. Very well. હેપી દિવાળી. બરાબર.